बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, सबसे पहले तो उनसे हम माज़रत करेंगे। थोड़ा सा हम लोगों की अरेंजमेंट में हमें टाइम ज़्यादा लग गया। आज हमारे साथ अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे सीपीडी ऑफिस में कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं। इसके अलावा आप बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में जो है अपना पीएचडी कर रहे हैं। तो ओवर टू यू रहीम साहब। हम लोगों का वैसे भी टाइम काफ़ी आगे हो चुका है। Thank you, तो Thank you, Rashid sir. Thank you so much for the introduction. Uh, Hello, viewers and participants. Hope everybody is doing well. This is Abdul Rahim, and I'm serving as a communication and reporting officer at CPD PITE since 2024. And I decided to discuss about the education in emergencies. So I discussed with Rashid Saab, and I told him that let's have an awareness program, a sort of a webinar, so that we can discuss and learn something from participants, and they will learn something from me. So it will be a sort of a webinar in which we will be discussing also, and in which we will be having a awareness session. So this webinar, as I told, will serve for two purposes. The very first purpose is that uh, it will be an awareness program for all of us and for all those people who don't know about the disaster risk reduction and who don't know about education in emergency. And this is a sort of an awareness and information webinar for them. The second purpose of this webinar is to learn the basic terminologies, simple terminologies regarding the disaster risk reduction or disaster management or disaster. Here, what I have done is that I have not brought any complex terms. I have not brought any complex definitions. I have tried to keep it as simple as possible. The reason behind this is that most of the participants will be from the education field. And of course, there will be students and there will be teachers at primary or secondary level schools. So I thought I'm not going to present it to the participants who belong to category of professors at universities or who belong to the category of academic literature. So this is the reason I kept it very simple and very short. It will be probably for 40 minutes, hopefully. Anyhow, turning back to our slides and turning back to our webinar. As you can see, the slides, DRR and education in emergencies. What is DRR? What is education in emergencies? What will be our learning points? We'll be discussing in this webinar. Here, so the content of the webinar is quite simple, as I told at the beginning. The learning objective for this webinar will be DRR, disaster risk reduction, DRM, disaster risk management, and EIE, education in emergencies. Well, I have not brought any definition of DRR. I have not brought any definition of DRM. Those who are interested in finding out long and lengthy definitions of these terms, you can find them out on Google, and there is an you can find out there. But we'll be discussing what are they for. The second learning point will be why link DRR with education, with education in emergency. And the third learning point will be key areas of integration. What should be the areas that should be integrated into education? And why to link, this is the second learning point, why to link it with the education? What is the reason? The fourth point will be DRR in curriculum, how to integrate, how to put the disaster risk reduction in our existing curriculum or in our upcoming curriculum or any curriculum that is designed for the primary level or secondary level. What are the challenges or what will be the challenges that we will face or currently we are facing, and way forward, what we can do for it. So in the introduction part, I will be discussing the disasters, impacts and their impacts. Slight background I'll be giving of disasters.
The reason is that because we are linking disaster and education, so I deem it necessary to give my participants an overview of the disaster and their impact, particularly on children. Difference between DRR and DRM, basic concept I'll be telling that what is the basic concept, why EIE matters, and linkage disaster risk reduction and education in emergencies. Then after it, we'll be having the UNICEF's response. Presenting this webinar on the platform of CPD, which is working under the canopy of UNICEF. I'm to present the mandate of the UNICEF and commitments of the UNICEF to education in emergencies. And then we'll be having sources for further reading. I have given only 3 to 4 or 5 resources. Those who get interested in reading further or understanding the disaster and education in emergencies, for them I have given some resources, some links, and some names of articles or websites. They can go through them and understand it well. And at the end, we'll be having a short answer question sessions in which we'll be trying to understand the basic concepts or remove the confusion that we have. So hopefully everybody got it, and I hope this content which I have kept is quite simple and in short. Anybody who has any question related to the content, complexity or simplicity of it? No. Okay, so as we have our learning objective, at the end of this webinar or this session, participants will be able to discuss. I have not written here deliberately the word explain, define. I have only written discuss because it is an awareness webinar, and you'll only be having the hello hi to the terms of disaster and education in emergency. I don't expect, and I don't think that I don't expect anybody after this webinar will be having a full-fledged knowledge regarding the disaster and education in emergency. Once again, the reason is that having the full-fledged knowledge for both of the vast areas such as disaster risk reduction and education in emergencies, you must have vast knowledge and background related to disaster and education in emergencies. So through this webinar, at least we can come to know that what DRR is and what EIE is. So that is why I have written that the participants will be able to discuss the following learning points. When somebody asks you what is DRR, what is disaster, why is it necessary to introduce disaster in education, at least you will be able to discuss with the guy or with the person the necessity of introducing DRR in educational sector or in education. Here, once again, the learning points are very simple. Differentiate between disaster risk reduction and disaster risk management. At the end of this webinar, you will be able to differentiate between these two terms. And after it, why to link, if somebody asks you why to link DRR in IE, you will be able to discuss it at least. What areas to be integrated, and after the DRR in curriculum, how to introduce DRR in curriculum, and challenges in EIE, and way forward or what to be done. These are simple learning points. You will be able to discuss these points with anybody who asks or who uses the terms related to disaster or education in emergency. Coming back to the main points and the main agenda of this webinar is to understand disaster and emergencies. I have tried to bring the shortest definition of disaster also and emergency also. So here the disaster you can see is a severe disruption causing widespread human, material, economic and environmental losses. कोई भी आफत, कोई भी ऐसा वाकया हो जिससे एक वसी तर पैमाने पे इंसान, मटीरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, माशियत और हमारे जो माहौल है, इन्वायरमेंटल है,
वो तबाह हो और तबाही का शिकार हो। ऐसे हालात को हम लोग डिजास्टर कहते हैं। अब डिजास्टर के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एरिया जो है वहां पर पॉपुलेशन हो। वन थिंग यू ऑल रिमेंबर दैट विदाउट पॉपुलेशन देयर विल बी नो डिजास्टर। मिसाल के तौर पर कोई फ्लड आता है किसी सहरा में, वहां पे ना कोई कंस्ट्रक्शन है, ना वहां पे कोई इकोनॉमिक हब है, तो वहां पे डिजास्टर नहीं हुआ। इट विल बी कॉल्ड ए नेचुरल फिनोमिना। वेयर एज ए डिजास्टर इज कंसर्न, डिजास्टर हमेशा इंसानों से रिलेट होता है। wherever there are human beings, there is infrastructure, economic hubs, environmental factors. वहां पे when something happens, a natural phenomena happens, and that causes destruction or destruction to the environmental factors, to the human losses, and to the capital, I mean the material or economic losses we get, there we call it a disaster. अब डिजास्टर के लिए दो सिचुएशंस का होना, बल्कि तीन सिचुएशंस का होना लाजमी है। द वेरी फर्स्ट सिचुएशन इज कि उस एरिया में हजर्ड हो। अब हजर्ड क्या है? दीज आर सम टर्म्स, आई एम जस्ट मेकिंग अ बैकग्राउंड फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अ डिजास्टर। डिजास्टर डायरेक्टली नहीं आते। फॉर डिजास्टर देयर मस्ट बी थ्री सिचुएशंस। अब वो तीन सिचुएशंस कौन से होते हैं? उस एरिया में हजर्ड होना चाहिए। अब हजर्ड एक ऐसा टर्म है जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। तीनों टर्म्स ऐसे हैं। उस एरिया में एक ऐसा फिनोमिना होना चाहिए कि जिसमें इतना पोटेंशियल हो कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। व्हाट इज एन हजर्ड? हजर्ड इज एन इवेंट और फिनोमिना दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज डैमेज और लॉस। मिसाल के तौर पर पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा चट्टान पड़ा हुआ है और उस चट्टान का गिरने का खतरा है, और चट्टान के नीचे जैसे हमारे कुछ इलाके हैं, मरियाबाद एंड सम अदर एरिया, अब वहां पे चट्टान गिरने का खतरा भी है और गरे भी है। सो चट्टान जो हमारे पास है दैट इज एन हजर्ड। वो एक हजर्ड है बिकॉज दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू द हाउसेज। अब ये सिचुएशन का होना डिजास्टर के लिए लाजमी है। सेकंड थिंग इज दैट vulnerability, those negative conditions that put you at risk, those negative conditions that expose you to any hazard, वो ऐसे हालात जो आपको हजर्ड के लिए एक्सपोज करता है, उसको हम लोग vulnerability कहते हैं। अगेन दिस टर्म इज द टर्म व्हिच वी यूज इन डेली रूटीन कि फला शख्स वल्नरेबल है। अब वल्नरेबल किस कॉन्टेक्स्ट में है? Let's suppose if we take it in an academic context, in school we say कि क्लास 4 का फला बच्चा वल्नरेबल है। इससे मुराद ये है कि ऐसे हालात से उसका सामना है, ऐसे नेगेटिव कंडीशंस के साथ उसका सामना है कि वो उसके फेलियर का बायस बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसके पेपर कमजोर है, he has not attempted quizzes or some other participants, he has not participated in some other activities। तो ये जो इसके हालात है ये इसको एक्सपोज करता है फॉर डैमेज। तो वल्नरेबिलिटी का होना लाजमी है। हजर्ड भी है, चट्टान भी है, गरे भी कच्चा है, अर्थक्वेक या डिजास्टर प्रूफ गरे नहीं है, तो वल्नरेबल भी है और हजर्ड भी है। अब इन दो कंडीशंस जब हो और जब नेचुरल फिनोमिना होता है, when the चट्टान falls or the rock falls, there comes a disaster। क्योंकि आबादी है, गरे टूटेंगे, एंड देन इकोनॉमिक लॉस होगा, ह्यूमन लॉस होगा, एंड मैनी मोर। तो इस सिचुएशन को हम लोग डिजास्टर कहते हैं। सो डिजास्टर इज अ सीवियर डिसरप्शन causing widespread human, material, economic and environmental losses। ये बात तो मेरे ख्याल में सबको समझ आ गई। अब इमरजेंसी क्या है? जब डिजास्टर आती है तो इमरजेंसी उसके साथ साथ अटैच होती है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट देयर इज अ डिजास्टर देयर इज नो इमरजेंसी।
ये हो ही नहीं सकता। जहां पर डिजास्टर होता है तो ऑफ कोर्स सिचुएशन ही ऑटोमेटिकली इमरजेंसी में चला जाता है। तो इमरजेंसी क्या है? अ सीरियस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। एक ऐसा एक्शन हालात हो जो इमीडिएट एक्शन चाहिए। डिजास्टर आया, घर तबाह हुए, लोग चट्टानों के नीचे हैं, मलबे के नीचे है। नाउ दिस सिचुएशन इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। हियर वी नीड रेस्क्यू टीम टू गो ओवर देयर एंड फाइंड आउट पीपल एंड टू सेव लाइव्स। इस सिचुएशन को हम लोग इमरजेंसी कहते हैं। एंड होपफुली ये दो टर्म्स जो मैंने इंट्रोड्यूस कराए, एवरीबडी ऑलरेडी न्यू देम, लेकिन सिर्फ ये एक बैकग्राउंड है कि हमने डिजास्टर को इमरजेंसीज के साथ, इमरजेंसी को एजुकेशन के साथ लिंक कर रहा है। उसके लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड हम लोगों ने देखना है। अच्छा, इससे रिलेटेड एनी क्वेश्चन एनीबडी हु हैज? वो समझ आ गया सर, ये समझ आ गया। गुड। ओके, डिजास्टर के 4 फेजेस होते हैं फंडामेंटली, लेकिन हर फेज के फिर अलग अलग फेजेस होते हैं। आई टोल्ड यू कि मैंने कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज या कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स वगैरह नहीं लाए। मैंने सिर्फ सिंपल, बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डिजास्टर इज। ओवरऑल डिजास्टर के 4 फेजेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट फेज इज, does everybody see the slide? सर क्या सबको स्लाइड नजर आ रहे हैं? जी आ रहा है सर। ये डिजास्टर फेजेस, डिजास्टर के 4 फेजेस है। वेरी सिंपल। व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक्स, जब डिजास्टर आता है, then the very first phase we have is response. In response, then we try to save people, we try to provide medicine, we try to provide water, shelter. ये चीजें हम लोग रिस्पॉन्स में प्रोवाइड करते हैं। and in response then of course we address all the needs of the affected people or the affected community. उसके बाद फिर हमारे पास रिकवरी फेज आता है। एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग कि दीज आर द सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल फेजेस। हर फेज के फिर अलग अलग फेजेस है। एंड आई टोल्ड यू इफ यू वांट टू लर्न in depth, then you have to go through some articles and some websites and you will understand what other phases are. रिकवरी के फेज में फिर हमारे पास 2 फेजेस आते हैं। रिकवरी हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट phase of recovery is reconstruction, sorry, rehabilitation. जो हमारे पास इमीडिएट बेसिस पे रिकवरी होती है, दैट इज रिहेबिलिटेशन। अब रिहेबिलिटेशन होती क्या है? रिहेबिलिटेशन इज द टेम्पररी कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर, हाउसेस एंड बेसिक नीड्स such as the sanitation, washroom and other facilities for the community. इस फेज को हम लोग कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन फेज। ये असल में रिकवरी का फेज है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? दूसरा फेज जो हमारे है वो रिकंस्ट्रक्शन है। अब रिकंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि द परमानेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग और बेसिक फैसिलिटीज और नेसेसिटीज फॉर द अफेक्टेड कम्युनिटी। इन दोनों में फर्क वाजे है कि रिहेबिलिटेशन से हमारा मुराद होता है टेम्पररी बेसिस पे। अब वो टेम्परेरी बेसिस से मुराद ये भी नहीं कि सिर्फ 1-2 दिन के लिए हो। वो टेम्परेरी बेसिस जो है वो डिपेंड करता है कम्युनिटी के रेजिलियंस पे, कम्युनिटी के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे, कम्युनिटी के कैपिटल पे और स्टेट के कैपिटल पे और प्रोविंस के कैपिटल पे, कि वो कितना जल्दी उस कम्युनिटी के लिए जो है रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये रिहेबिलिटेशन के जो सेंटर्स बनेंगे, कंस्ट्रक्शंस होंगे, शेल्टर होम्स बनेंगे या दूसरे फैसिलिटीज बनेंगे। अब ये फैसिलिटीज हो सकते हैं 2 साल तक भी हो, 3 साल तक भी हो। आई टोल्ड यू इट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी, कैपिटल ऑफ द कम्युनिटी, इकोनॉमिक ऑफ द कम्युनिटी और स्टेट। रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन जो हमारे पास है दैट इज फॉर परमानेंट बेसिस। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है फिर वंस अगेन के वहां पे हजार्ड मैपिंग होगी, वहां पे रिस्क एनालिसिस होगा,
vulnerability analysis होगी, and then they will be doing the reconstructions. अच्छा, इस दौरान आबिद सुल्तान ने एक क्वेश्चन किया है कि could a disaster, a hazardous disaster is be a man-made or natural? इस पे आते हैं हम, इस पे आते हैं. I'll be telling. ये सिर्फ हमारे phases है. After it we have got a mitigation. अच्छा, मिटिगेशन का फेज जो हमारे पास होता है, मिटिगेशन फिर हमारे पास इसके दो फेजेस होते हैं. फेजेस रादर आई वुड से दो टाइप्स होते हैं हमारे पास मिटिगेशन के. द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मिटिगेशन इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर मिटिगेशन. थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोग मिटिगेट करते हैं, या इसको हम लोग स्ट्रक्चर मिटिगेशन कहते हैं. दूसरा जो हमारे पास इसका टाइप है, दैट इज नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन. अब नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन से क्या मुराद और स्ट्रक्चर मिटिगेशन से क्या मुराद? स्ट्रक्चर मिटिगेशन से मुराद ये है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहाड़ पे चट्टान पड़ा हुआ है. नाउ हाउ टू मिटिगेट दिस हजर्ड. ये तो हजर्ड है, इसको खत्म कैसे करें, इसको कम कैसे करें, इसको प्रिवेंट कैसे करें. इस प्रिवेंशन के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर मिटिगेशन मेथड है, जिसके लिए हम इंजीनियर्स को बुलाते हैं. एक मैसिव वॉल बनाते हैं, जैसे वॉल ऑफ चाइना बन गया. गॉट इट? दैट वाज आल्सो ड्यू टू अ हजर्ड. एक हजर्ड उन्होंने फेस किया, एंड देन दे क्रिएटेड अ वॉल ऑफ चाइना. इसी तरह ये एक स्ट्रक्चर मिटिगेशन है. मेरे ख्याल में इससे और सिंपल एग्जांपल मेरे जहन में नहीं आ रहा. तो वी मेक वॉल्स, डैम्स वगैरह वगैरह. ये स्ट्रक्चर हमारे पास स्ट्रक्चर मिटिगेशन है. दूसरा जो हमारे पास मिटिगेशन होता है, दैट इज नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन. अब नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है. ट्रिकी से मुराद कि दैट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी. अब कम्युनिटी अवेयरनेस उसमें आती है, उसमें प्रिपेयर्डनेस लेवल आता है, उसमें लोगों का एजुकेशन आता है. दैट इज नॉन एज ए नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन. अब नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन में लोगों में अवेयरनेस होती है कि वहां पे चट्टान पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर घर क्यों बनाऊं, या इस नदी में जो है पानी आने वाला है, 10 साल के बाद जो है बारिश होगी, एंड देन विल बी हैविंग फ्लड, फ्लश फ्लड आएगा. व्हाई शुड आई कंस्ट्रक्ट माय होम इन दिस रिवर? तो ये जो है, ये हमारे पास नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन है, जो लोगों के अवेयरनेस, उनके नॉलेज, उनकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है. देन आफ्टर इट वी हैव द फेस प्रिपेयर्डनेस. फिर लोग प्रिपेयर्डनेस करते हैं. पीपल प्रिपेयर देमसेल्व्स. अच्छा, प्रिपेयर्डनेस में यही होता है कि आपने अपना घर किस तरह बनाना है, एंड घर में कौन कौन सी चीजें रखने हैं, इमरजेंसी किट रखनी है. दीज ऑल आर द प्रिपेयर्डनेस स्टेजेस. एंड आफ्टर दैट अगेन डिजास्टर स्ट्राइक्स, एंड दिस इज अ साइकिल गोज ऑन. अच्छा, यहाँ पे आके मैं अब्दुल सलाम का जो क्वेश्चन है उसको भी एड्रेस करता हूँ कि डिजास्टर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. डिजास्टर बेसिकली 3 टाइप्स का होता है. एक हमारे पास होता है नेचुरल डिजास्टर. अर्थक्वेक हुआ, फ्लड आया, एंड इसी तरह वोल्केनोज है, एंड मैनी मोर. ये हमारे पास है नेचुरल डिजास्टर्स. और हमारे पास दूसरा टाइप जो है, दैट इज मैन मेड डिजास्टर. इंसान का बनाया हुआ आफात. अब मैन मेड डिजास्टर्स में हमारे पास सिविल वार्स आते हैं. मैन मेड डिजास्टर्स हमारे पास बॉर्डर वॉर्स आते हैं. मैन मेड डिजास्टर्स में हमारे पास टेररिस्ट अटैक्स आते हैं. मैन मेड डिजास्टर्स में हमारे पास सिविल अनरेस्ट आता है. मैन मेड डिजास्टर्स में हमारे पास बहुत सारे प्लेन क्रैश वगैरह या इस तरह की चीजें जो है वो मैन मेड डिजास्टर्स में आते हैं. तीसरा जो टाइप डिजास्टर है, दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स डिजास्टर. कॉम्प्लेक्स डिजास्टर कौन सा डिजास्टर होता है कि हमेशा वो डिजास्टर जिसका हमारे पास रूट काज का सही पता ना हो. व्हेन वी डोंट नो वेयर दिस डिजास्टर स्टीम फ्रॉम, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स डिजास्टर्स कहते हैं. अब ये 3 टाइप्स, फंडामेंटल टाइप्स मैंने बता दिए. अब इन 3 टाइप्स में जब आप फर्दर जाओगे, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स भी है, हमारे पास बायोलॉजिकल डिजास्टर्स भी है, अब हमारे पास जियोग्राफिकल डिजास्टर्स भी है, हमारे पास फिजिकल डिजास्टर्स भी है. इस तरह फिर फर्दर ज्यादा टाइप्स होंगे. लेकिन फंडामेंटली जो हमारे पास डिजास्टर्स होते हैं वो ये 3 डिजास्टर्स होते हैं. तो तीन तीन डिजास्टर्स में से जो है, कॉम्प्लेक्स डिजास्टर एक ऐसा डिजास्टर है जिसका हमें वजह पता नहीं होता, लेकिन डिजास्टर आती है. अब उसका वजह जो है वो डिबेटेड होती है.
The cause for that disaster is always debated. Where it stems from, nobody knows. Yes, people have different opinions. Researches are conducted. Every researcher, every scholar comes up with a new idea, with a new cause. इसकी मिसाल ये है कि we had COVID-19. COVID-19, some people they said it spread uh, through a biological disease. Some people said no, it was natural. Some people said no, it was man-made, it was made in a laboratory, and then it was brought to the society or to the market, and it was spread. The cause or the root cause of this disaster was debated at every platform. And yet, we don't know the exact cause for that disaster. एक disaster आया, पूरी दुनिया को उसने jam किया, and it affected economy, it affected people died due to that disaster, but we don't know the cause of that disaster. इसी तरह World War One में शायद, then we over that time we had influenza, इसी type का एक disaster था. अब World War One में if you remember 20 मिलियन लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए. दैट वाज अ मैन मेड डिजास्टर. उसमें फिर इन्फ्लुएंजा भी आई. अब इन्फ्लुएंजा कहां से आई? अगेन दैट इज डिबेटेड. सम पीपल से इट वाज मेड एंड देन इट वाज स्प्रेड, ताकि एक वार रुक जाए. सो एनी डिजास्टर which cause is unknown, sorry, whose cause is unknown, whose cause is debated, is known as a complex disaster. अच्छा, फिर डिजास्टर में हमारे पास फेजेस होते हैं. जस्ट फॉर योर नॉलेज, फेजेस में हमारे पास स्लो ऑनसेट डिजास्टर्स होते हैं एंड रैपिड ऑनसेट डिजास्टर्स होते हैं. और स्लो ऑनसेट डिजास्टर जैसे हमारे पास ड्राउट है, खुश्क साली है. अब खुश्क साली एकदम से नहीं आती. खुश्क साली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ग्राउंड वाटर खत्म होने लगता है, एंड देन फाइनली बारिशें नहीं होती, एंड फाइनली द एरिया इज अफेक्टेड विद ड्राउट. ये हमारे पास एक स्लो ऑनसेट डिजास्टर है एंड इट विल टेक टाइम. ये हमारे पास कुछ ऐसे डिजास्टर होते हैं. और कुछ डिजास्टर हमारे पास रैपिड ऑनसेट होते हैं. लेट्स सपोज वी हैव एन अर्थक्वेक, फ्लैश फ्लड. ये रैपिड ऑनसेट डिजास्टर्स होते हैं. दे डू नॉट गिव यू मच टाइम टू प्रिपेयर, दे डू नॉट गिव यू मच टाइम टू रन अवे, सो दे आर नोन एज दी रैपिड डिजास्टर्स. एक इस तरह के भी दो टाइप्स हमारे पास फेजेस में दो टाइप्स है. यहाँ तक शायद सबको समझ आ गई. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर नाउ? एनी कंफ्यूजन? No? Shall we move ahead? जी सर, बिल्कुल क्लियर है. We. Acha, I guess I'm also taking much time. I'll be a bit fast. Why we? Why are we affected time and again by these disasters? Why not other people? तो इस स्लाइड को सिर्फ एक once again अवेयरनेस के थ्रू जो है ना, मैंने यहाँ पर रखा कि मैं एक अवेयरनेस दूं कि एशिया में जो है दुनिया भर की आबादी जो है 60% जो है वो एशिया में है. ओवर पॉपुलेटेड. एशिया इज ओवर पॉपुलेटेड. मैंने आपसे कहा कि डिजास्टर वहीं पर ज्यादा स्ट्राइक और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जहां पर पॉपुलेशन हो. जहां पर पॉपुलेशन कम हो वहां पर इतने ज्यादा उसके नुकसान नहीं होते. सो हियर वी हैव the slide. You can see that rest of the world is consisted of 40%, and whereas Asia is concerned, that alone is responsible 60%. यहाँ पे 60% जो population है वो एशिया में रहती है. Casualties, अब दूसरे साइड पे on the left side you can see casualties. Rest of the world 13%. Whenever a disaster strikes throughout the world, तो rest of the world 13% strike होता है, and in Asia it's casualties reach to 87%. अब सिर्फ एशिया में 87% जो है हमारी कैजुअलिटीज होती है. उसका रीजन यही है कि हियर एशिया इज ओवर पॉपुलेटेड, कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां पर जब डिजास्टर आता है तो वहां पर उतने ज्यादा ही अमवात होते हैं. अगेन थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्यों लाजमी हुआ और ये टर्म आजकल क्यों इतना एक्सप्लोर हो रहा है. व्हाट इज द नीड? You can see a list of events from the history. List of events हमें ये बताता है कि 1530 से लेकर
फिर 2024 तक या 25 तक हमारे पास मुख्तलिफ डिजास्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने केसेस ऑफ फ्लड लिए, एक फ्लड को मैंने लिया हुआ है कि एक फ्लड के मद में यू कैन सी द डेथ रेट एंड द डेथ नंबर, कि हमारे पास 1 to 2 मिलियन पीपल, 10 लाख 20 लाख लोग जो है वो मौत के शिकार हुए हैं। 5,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं। सो यू कैन सी ऑल दीज डेट्स एंड द कंट्रीज एंड डिजास्टर। तो डिजास्टर से एनुअली इतने सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक प्रिपेयर्डनेस करनी होगी, ताकि डिजास्टर के जो इम्पैक्ट्स है वो मिटिगेट हो, वो कम हो। डिजास्टर्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, यहां पर आके हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि डिजास्टर्स का बच्चों पे कौन से इम्पैक्ट्स होते हैं। अच्छा, डिजास्टर यहां पर जो यूनिसेफ है, यूनिस्को है, एंड स्कॉलरली वर्क हाईलाइट ग्रोइंग रिस्क। अब उसमें वो कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 in 5 चिल्ड्रन ग्लोबली लिव इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज। हर एक बच्चा 5 में से जो है वो एक ऐसे मुल्क में रहता है जहां पर वो मुल्क वार का शिकार हो। 242 मिलियन फेस एजुकेशन डिसरप्शन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इन 2024। सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से 242 मिलियन बच्चे जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड दे फेस्ड एजुकेशन डिसरप्शन, सिर्फ 2024 में। स्कूल्स डैमेज बाय 2022 फ्लड, पाकिस्तान में, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली पाकिस्तान की बात की है, 30,843 स्कूल जो है वो 2022 के फ्लड में अफेक्ट हुए। एंड देन वी हैव स्कूल डैमेज इन बलूचिस्तान। अब 7,446 जो है 39, ये सिर्फ बलूचिस्तान में ये स्कूल जो है अफेक्ट हुए हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का जो रेशो है पाकिस्तान में 22.8 मिलियन तक पहुंच चुका है। यूथ आर एट रिस्क एट मैन फिजिकल हेल्थ चैलेंज सच एज द malnutrition, गैस्ट्रोएंट्रीज एंड एस्थमा। ये जो बहुत सारे बीमारियां इन यूथ में हमारी फैल रही है, ये भी डिजास्टर की वजह से है। डिजास्टर बच्चे को 3 मेजर एरियाज में जो है अफेक्ट करता है। 3 मेजर एरियाज जो हमारे बच्चे की है, उनके मेंटल लेवल पे जो है ये अफेक्ट करता है। अक्सर बच्चे जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, एंड रिलेटेड टू पोस्ट स्ट्रेस पोस्ट डिजास्टर ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के हवाले से, इफ यू वांट टू स्टडी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसी तरह हमारे पास एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पीच इंपेयरमेंट्स होते हैं, बच्चों में डिप्रेशन होते हैं, वो काते नहीं है, मेलन्यूट्रेट हो जाते हैं, वो बात सही नहीं कर सकते। ऑल दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर। अब डिजास्टर से सिर्फ ये मुराद नहीं कि अर्थक्वेक आया एंड देन दे बिकम द विक्टिम ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या डिप्रेशन या एंजाइटी या वगैरह वगैरह। नो, जब डिजास्टर आता है किसी इलाके में, वहां पर बच्चे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। ज्यादा वल्नरेबल इसलिए होते हैं, दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। वहां पर वो हर किस्म के वायलेंस के शिकार हो सकते हैं, वो फिजिकल वायलेंस के शिकार हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन द फिजिकल वायलेंस इन अदर फॉर्म्स, कि हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं या माइनर बच्चे जो होते हैं, बच्चियां जो होती है, वो मुख्तलिफ फिजिकल वायलेंस के शिकार होते हैं ड्यूरिंग डिजास्टर। अच्छा, वो मेंटल वायलेंस के शिकार होते हैं। तो इन मेंटल और फिजिकल वायलेंस के जब वो शिकार होते हैं, सो दैट वायलेंस रिमेन्स इन देयर माइंड फॉर एवर। फिर उसके बाद उनको वो अपनी रिकवरी नहीं कर सकते, वो बार बार वो दे गेट फ्लैशबैक ऑफ दोज इवेंट्स और दोज हैपनिंग्स। तो इसलिए वो जो है वो ना सही पढ़ सकेंगे और ना वो सही बात कर सकते हैं। दे गेट स्पीच इम्पेयरमेंट, और उनके लिए फिर एक अलग ट्रीटमेंट होती है। अब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में फर्क क्या है? आई टोल्ड यू आई हैव नॉट ब्रॉट एनी लॉन्ग डेफिनेशंस, जस्ट यहां पर हम समझेंगे कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है, दैट इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिंग रिस्क, दैट इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग एग्जिस्टिंग रिस्क। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रेजिलियंस। ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है।
डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि disaster risk management describes the actions we take to put DRR into practice. Why disaster risk reduction is connected or answers the question why, और disaster risk management answers the question how. मैं ये कहता हूं कि मैंने रिस्क को मिटिगेट करना है, रिस्क को रिड्यूस करना है. क्या करना है? मैंने रिस्क को रिड्यूस करना है. दैट इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ऑल अबाउट प्रिवेंशन. अब हाउ टू डू इट, यहां पर जो तरीकाकार बताता है, दैट इज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट. बिल्डिंग डिफेंसेस, यू कैन सी स्लाइड. बिल्डिंग डिफेंसेस, आप डिफेंसेस बना ले, आप वॉल्स बना ले. प्रिपेयरिंग कम्युनिटीज, हाउ टू रिड्यूस रिस्क, प्रिपेयर कम्युनिटीज, हाउ टू रिड्यूस रिस्क, प्लानिंग एवैक्यूएशन. इक्वेशन से मुराद के ऐसे रूट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि ड्यूरिंग डिजास्टर आपने उन रूट्स को यूज करते हुए जल्द उस इलाके से निकलना है, या स्कूल से निकलना है, या कहीं से निकलना है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन DRR एंड DRM. DRM is about how, DRR is about what. Education in emergencies. What is education in emergencies? The provision of quality education opportunities that meet the physical protection, psychosocial development, and cognitive needs of people affected by emergency, which can be both life sustaining and life saving. एक ऐसा तालीमी निजाम बच्चों को प्रोवाइड कर ले जिसमें उनका साइको सोशल प्रोटेक्शन हो, उनका फिजिकल प्रोटेक्शन हो, उनका कॉग्निटिव मेंटल प्रोटेक्शन हो. ऐसी एजुकेशन के प्रोवाइड करने का को हम लोग एजुकेशन इन इमरजेंसीज कहते हैं. नीचे मैंने कोटेशन लिखा है कि रेजिलिएंट एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट बिल्डिंग. ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने के हद तक नहीं है कि हमने रेजिलिएंट एजुकेशन की जब हम बात करते हैं कि हमने बिल्डिंग्स बना ली तो दैट इज हमारे बच्चे जो है या हमारी एजुकेशन जो है वो रेजिलिएंट हो गया. नो, इट्स अबाउट प्लानिंग, पीपल एंड प्रिपेयरनेस. लोगों में शऊर होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको डिजास्टर टाइप्स का पता होना चाहिए. पर्टिकुलरली टीचर्स जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, दे मस्ट नो द साइकी ऑफ द चिल्ड्रन. ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. स्कूल टीचर्स जो है, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. उनको बच्चे के हवाले से पता होना चाहिए. इफ अ चाइल्ड कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, वो रिंग कर रहा है, सो ही मस्ट अंडरस्टैंड कि बच्चा जो है उसके साथ कुछ हो रहा है. या इफ द चाइल्ड इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लास, सो द टीचर मस्ट अंडरस्टैंड कि उसके साथ कुछ हो रहा है. सो द टीचर मस्ट इन्वेस्टिगेट एंड मस्ट सोल्व द केस ऑफ द चाइल्ड. तो हमारे जो उस्ताद है, दे प्ले अ वाइटल रोल, पर्टिकुलरली इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस कोटेशन, कि इट इज अबाउट प्लानिंग, पीपल एंड प्रिपेयरनेस. वो बच्चों को भी प्रिपेयर कर ले, खुद भी प्रिपेयर हो जाए, एंड दे मस्ट अंडरस्टैंड कि which child is affected by which type of disaster. अब एक लिंकेज मैंने 3 पॉइंट से की है, कोशिश की है कि मैंने 3 पॉइंट से इसको एक थ्योरेटिकल लिंकेज दे दूं कि बिटवीन DRR एंड DRM, sorry, education in emergency. Linkage between disaster risk reduction and education in emergency. The very first point is that DRR provides the preventive and preparedness lens. DRR आपको ये तरीकाकार बताएगा, DRR आपको अवेयरनेस देगा, DRR आपको इस हवाले से बताएगा कि कौन से ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स है कि हम उनसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर अपकमिंग डिजास्टर. द सेकंड पॉइंट इज दैट एजुकेशन इन इमरजेंसी ऑपरेशनलाइजेस एजुकेशन ड्यूरिंग क्राइसिस. अब एजुकेशन इन इमरजेंसी का फिर क्या काम है? वो इमरजेंसीज के दौरान जो है एजुकेशन को ऑपरेशनलाइज करता है. टुगेदर DRR provides the preventive and preparedness lens. Education in emergency operationalizes education during crisis. अब together they form a risk informed education system. एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम ये दोनों मिलके फॉर्म करेंगे, बनाएंगे कि उसमें हर बच्चे को, हर उस्ताद को,
हर उस शख्स को जो एजुकेशन फील्ड या इस सेक्टर से रिलेटेड हो, उसको रिस्क के हवाले से भी पता हो, उसके डिजास्टर के हवाले से भी पता हो, और ना कि सिर्फ उनको डिजास्टर के हवाले से पता हो, बल्कि उनके प्रिवेंटिव मेजर्स उनको पता हो, प्रिपेयर्डनेस लेवल्स उनको पता हो, और उनको ये भी इल्म हो कि कहाँ पर हजर्ड है, कहाँ पर वल्नरेबिलिटी है, कहाँ पर रिस्क है, एंड हाउ टू रिड्यूस द रिस्क एंड हाउ टू अवॉइड एंड प्रिवेंट द डिजास्टर। इसी तरह हमारे पास है कि की एरियाज ऑफ इंटीग्रेशन, कौन से ऐसे एरियाज हो सकते हैं जिनको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं डिजास्टर एंड एजुकेशन इमरजेंसीज में। हमारे पास है स्ट्रेटेजिक अप्रोच एम्फसाइजेस मेनस्ट्रीमिंग डीआरआर इनटू ऑल फेजेस ऑफ एजुकेशन एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट थ्रू नंबर 1 पॉलिसी इंटीग्रेशन। ये चीज बिल्कुल पॉलिसी में आनी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी जितनी भी पॉलिसीज बनती है उसमें डीआरआर मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। कैपेसिटी डेवलपमेंट, अब कैपेसिटी डेवलपमेंट में ये होना चाहिए, अब कैपेसिटी डेवलपमेंट, ये वेबिनार भी एक कैपेसिटी डेवलपमेंट है। इसमें जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है, इफ दे हैव नेवर हर्ड अबाउट डीआरआर और दे नेवर हर्ड अबाउट एजुकेशन इन इमरजेंसी एंड हाउ टू लिंक, वो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है कि हाउ टू इंटरलिंक और व्हाट एरियाज टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द एजुकेशन एंड डीआरआर। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, and stakeholders collaboration to build resilient, safe and inclusive education during crisis and beyond। क्राइसिस आती है या क्राइसिस नहीं होती, एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए कि वो रेजिलिएंट हो। रेजिलिएंट पे मैं बात करूंगा कि व्हाट रेजिलिएंट मीन। अच्छा, फिर हमारे पास है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन कैरिकुलम, हाउ टू इंट्रोड्यूस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन आवर कैरिकुलम। इसको मैंने दो अप्रोचेस से देखा है और दो अप्रोचेस मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। देयर कुड बी अदर अप्रोचेस आल्सो, यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन फाइंड आउट मे बी बेटर अप्रोचेस। यहाँ पर जो मुझे समझ आए, देयर आर टू फंडामेंटल अप्रोचेस थ्रू विच यू कैन एम्बेड डीआरआर इन करिकुलम। पहला जो हमारे अप्रोच होता है दैट इज सेक्टरल अप्रोच। अब सेक्टरल अप्रोच में हमारे पास इंटीग्रेट डीआरआर विद इन नेशनल एंड प्रोवेंशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो हमारे पास नेशनल एंड प्रोवेंशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स है, उसमें आपने जो है डीआरआर को इंटीग्रेट करना है। अलाइन विद सिंडाई फ्रेमवर्क, जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है क्वालिटी एजुकेशन पे, एंड एजुकेशन सेक्टर प्लान। जितने भी एजुकेशन सेक्टर प्लान बनते हैं उसमें डीआरआर के जिक्र, उसमें डीआरआर के चैप्टर्स, मॉड्यूल्स होने चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज इंश्योर डीआरआर लर्निंग आउटकम्स आर एज एप्रोप्रिएट। ये सेक्टर यहाँ पर ये पूरे निजाम की बात हो रही है, यहाँ पर एक पूरे प्लान की बात हो रही है कि डीआरआर जो है उसके जो लर्निंग आउटकम्स है वो एज एप्रोप्रिएट हो। ये ना हो कि आप क्लास 2 में रेजिलियंस समझा रहे हो या क्लास 2 में हजर्ड समझा रहे हो, दैट इज इम्पॉसिबल। क्लास 2 में आप सिर्फ ये कह सकते हो कि फलाफला से किस तरह बचना है। क्लास 2 में आप उनको गुड एंड बैड टच के हवाले से आप उनको समझा सकते हो, इस तरह के छोटे छोटे प्रिपेयर्डनेस लेवल्स फ्रॉम सेविंग देमसेल्व्स फ्रॉम एनी फिजिकल वायलेंस। तो इस तरह के आप उनको अवेयरनेस दे सकते हो। द सेकंड अप्रोच इज क्रॉस कटिंग अप्रोच विच इज नोन एज इंक्लूजन आल्सो। क्रॉस कटिंग अप्रोच से मुराद एम्बेडिंग डीआरआर कंसेप्ट अक्रॉस सब्जेक्ट्स। ये हमारे पास एक आसान और अच्छा तरीका है। वी कैन इंट्रोड्यूस डीआरआर इन द करिकुलम। Let's suppose if we have a geography subject at class 4th, 5th, 6th, वहां पे हम लोगों ने हजरत का एक छोटा सा सब्जेक्ट या एक टॉपिक रखना है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से रखना है, फ्लड, ड्राउट्स वगैरह वगैरह, एंड दैट दोस टॉपिक्स हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड सम एक्सटेंट। साइंस के सब्जेक्ट इसी तरह काजेज एंड इंपैक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स, आप उनको समझा दो कि क्या क्या काजेज हो सकते हैं, कौन कौन से इंपैक्ट्स उनके हो सकते हैं। सोशल स्टडीज है, उनमें सोशल स्टडीज में इस तरह टॉपिक्स हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि कम्युनिटी रेजिलियंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस किस तरह होती है, या प्रिपेयर्डनेस लेवल क्या है, या प्रिपेयर्डनेस कैसी होती है। सो दैट इज नोन एज ए क्रॉस कटिंग अप्रोच। तो इन तरीकों से हम वो डीआरआर वी कैन इंक्लूड इन आर एजुकेशनल कैरिकुलम। कमिंग टू द चैलेंजेस इन ईआईई, अब इनमें चैलेंजेस क्या है? Challenges include destroyed infrastructure, lack of funding, shortage of trained teachers। यहाँ पर shortage of trained teachers को मैंने पर्टिकुलर हाईलाइट किया है so that we can come to know कि हमारे पास जो टीचर है वो इस एरिया में
पर्टिकुलरली जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के एरिया में है, दैट दे आर अनट्रेंड, वो मुकम्मल तौर पर ट्रेन होने चाहिए ताकि वो बच्चे को साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कर दे। साइको सोशल सपोर्ट से मुराद वो है कि दे मस्ट अंडरस्टैंड आइदर द चाइल्ड इज और वेदर द चाइल्ड इज impacted by any post traumatic stress disorder या acute stress disorder या डिप्रेशन। इस चीज के लिए जो है एक मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द चाइल्ड साइकी। एंड बैरियर्स फॉर गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन, बैरियर्स है गर्ल्स के लिए, मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन है, वल्नरेबल चिल्ड्रन है। सॉल्यूशन मस्ट बी comprehensive। डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स एज शेल्टर, फंडिंग गैप्स, ये हमारे पास चैलेंजेस है। टीचर शॉर्टेज, वही बात है हमारे पास। जेंडर डिस्पैरिटी, इंक्लूजन इश्यूज, ये हमारे पास जो मेन इश्यूज आ रहे हैं वो इन इश्यूज के हैं। नाउ वी नो दैट एजुकेशन इन इमरजेंसी जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उनमें हमारे पास सबसे बड़ी जो इशू होती है वो डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि हमने कहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना है। स्कूल तो दबा हुआ है, वहां तो पानी है। सो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज। आगे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यूनिसेफ ने इसको किस तरह डील किया है। यूनिसेफ मैंडेट एंड कमिटमेंट, इस हवाले से ये चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए या एजुकेशन इन इमरजेंसी में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो है, यूनिसेफ मैंडेट मेक्स एजुकेशन अ कोर कमिटमेंट इन ह्यूमैनिटेरियन एक्शन। इट वर्क्स विद गवर्नमेंट एंड पार्टनर्स अक्रॉस सेक्टर्स टू कीप एजुकेशन गोइंग। यूनिसेफ पार्टनर्स के साथ काम करता है, गवर्नमेंट के साथ काम करता है, और ये इंश्योर करता है कि किसी भी सूबे में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बच्चा ना रह जाए जिस तक एजुकेशन ना पहुंच सके। So that is why they worked on education in emergencies. Core commitment for children in humanitarian action इन्होंने की है। Education as life saving service है। Integration with rash, protection, health, partnering with government and other NGOs या INGOs, उनके साथ पार्टनरशिप पे जो है एजुकेशन इन्होंने हर सूबे, हर इलाके तक इन्होंने पहुंचाई है। यूनिसेफ के 3 अप्रोचेस है डीलिंग विद द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड एजुकेशन इन इमरजेंसीज। अब इनके 3 फोल्ड जो अप्रोच है, दैट इज प्रिपेयर्डनेस। जो पहला अप्रोच है इनका प्रिपेयर्डनेस, रिस्क मैपिंग है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, प्री पोजिशनिंग किट्स है, इनका प्रोविजन है। ये तैयार करते हैं स्कूल्स में, हेड टीचर्स जो होते हैं उनको इस चीज पे आगाही देते हैं। एंड सेकंड रिस्पॉन्स, इन लोगों ने ये रिस्पॉन्स करते हैं किसी डिजास्टर को, और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ये लोग एजुकेशन को एड्रेस करते हैं। वो TLC टेम्पररी लर्निंग सेंटर्स इन्होंने बनाए हुए हैं। हमारे पास केस स्टडीज भी है एक दो, वी विल डिस्कसिंग दोस। लर्निंग किट्स, टीचर ट्रेनिंग एंड साइको सोशल सपोर्ट। रिकवरी में इनके पास जो है स्कूल रिहेबिलिटेशन, कुछ स्कूल्स इन लोगों ने रिहेबिलिटेट किए हैं। System strengthening the system through training of the teachers, through providing funds and other facilities. So these are 3-fold approach of the UNICEF, जिसके थ्रू वो एजुकेशन इन इमरजेंसीज को एड्रेस करते हैं। जैसे हमारे पास केस स्टडी है पाकिस्तान फ्लड, वी हैड द पाकिस्तान फ्लड 2022। यूनिसेफ एक्शन वाज 1/3 ऑफ द कंट्री सबमर्ज्ड इन फ्लड, मिलियन डिस्प्लेस्ड, ये उसके इम्पैक्ट थे। And supported teachers to restore education quickly. UNICEF supported teachers in order to restore the education quickly. Established temporary learning centers, distributed emergency and learning kits, and transitions of recovery and rebuilding. In this flood of 2022 of Pakistan, the UNICEF commitment came into action, and ये चीजें उन्होंने provide किए, and then they address the education in all those areas which affected by disaster. इसी तरह रोहिंग्या में एक जो डिजास्टर आया था, यूनिसेफ क्रिएटेड लर्निंग सेंटर्स, प्रोवाइडेड साइको सोशल सपोर्ट, पायलटेड म्यांमार करिकुलम, वहां पर एक नया करिकुलम बनाया गया, एंड देन प्रमोटेड गर्ल्स एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने ये 4 चीजें की है। फर्स्ट चीज ये था कि लर्निंग सेंटर्स इन कैंप्स, उन्होंने कैंप्स बनाए in order to continue the learning, they should not stop, and psycho social support प्रोवाइड किया, लाइफ स्किल्स प्रोवाइड किए कि हाउ टू सेव योर लाइफ from violence, from people, from disasters and from other vulnerabilities. म्यांमार जो है कैरिकुलम उन्होंने पायलट की, एंड गर्ल्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन्होंने प्रोवाइड की। दिस वाज आल्सो द रिस्पांस टू रोहिंग्या डिस्ट्रक्शंस और द डिजास्टर। अब हमारे पास वे
फॉरवर्ड क्या है इन ऑल सिचुएशंस को देखते हुए? व्हाट टू बी डन? गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है, शुड बिल्ड रेजिलियंट सिस्टम, नॉट जस्ट टेम्पररी रिलीफ। ये जो हमारे पास टेम्पररी रिलीफ होते हैं ये कुछ अरसे तक होते हैं। इसके लिए एक वे फॉरवर्ड ये है कि जो से एरिया बार बार वहां पे डिजास्टर आता है, सो दे शुड बिल्ड ए रेजिलियंट सिस्टम, integrate EIE into national education plan, strengthen local capacity। वहां पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल टीचर्स हैं, उनको इतनी उनकी जो जो कैपेसिटी है वो इतनी बढ़ाए कि वहां पे बाहर से सपोर्ट की जरूरत ना हो। Instruct schools located in hazard prone areas to higher standard of hazard resilience। ऐसे स्कूल बनाए कि वो एक हाई स्टैंडर्ड रेजिलियंस लेवल के हो। एड फीचर्स इन स्कूल in hazard prone area for use as emergency shelter as। अगर किसी एरिया में hazard है, वहां पर डिजास्टर आता है, तो वहां पर जो स्कूल्स है वहां पर कुछ ऐसे फीचर्स उन्होंने उन स्कूल्स में रखने हैं कि अगर यहाँ पर डिजास्टर आता भी है तो ये लोग स्कूलों में पनाह ले लेते हैं या बच्चे स्कूलों में पनाह ले लेते हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटीज हो। तो उसमें 3 फैसिलिटीज काफी इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट वन इज वाटर फैसिलिटी, द सेकंड वन इज सैनिटेशन एंड द थर्ड वन इज कुकिंग। वहां पर कुकिंग के लिए कोई फैसिलिटी हो, वहां पर सैनिटेशन की फैसिलिटी हो, वाटर फैसिलिटी हो। ये उन एरियाज के लिए जहां पर वो एरियाज हजर्ड प्रोन एरियाज हो, डिजास्टर प्रोन एरियाज हो, वहां पर डिजास्टर आने का खतरा हो या आता रहता है। आते अब रेफरेंसेस पे, कुछ 5 मैंने रेफरेंसेस सिंपल रखे हुए। इफ यू वांट टू स्टडी फर्दर, एज आई टोल्ड एट द बिगिनिंग, इट वाज एन अवेयरनेस सेशन लिंकिंग DRR and education in emergency। Education in emergency, UNICEF got to the 2024 report, and you can also study the latest report. Maybe it is already published or not, I did not find. And then we have International Network for Education in Emergency, INEE, minimum standards for education in emergency, chronic crisis and early reconstructions. You can read this. And the impact of natural disaster on child health and investment in rural article rural India. It is an article you can get insightful article. You can get many ideas and knowledge from it. Understanding the impact of natural disaster on children. ये भी एक article है, you can study, and it is published by the Society for Research in Child Development. And then we have the last reference I have given, education in emergencies, improving the education in emergency, EIE data landscape, UNESCO का जो website है उस पे आपको ये मिल सकता है। These are 5 references you can get knowledge from, but there could be other also thousands, millions of other articles and other websites you can study from. Here, I will come to the end. And before coming to the end, recently I met one of the PhD students, and she was doing her PhD in education. So her topic included one term, academic resilience. तो उसको मैंने यही कहा कि एकेडमिक रेजिलियंस से क्या मुराद, या एकेडमिक रेजिलियंस से आपका क्या मुराद। रेजिलियंस एक अल्फाज है जो आजकल ज्यादा यूज हो रहा है। रेजिलियंट सिस्टम, रेजिलियंस पर्सन, रेजिलियंट पर्सन, रेजिलियंट सिस्टम, रेजिलियंट एजुकेशन सिस्टम, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलियंट मैन, ये जितने भी हमारे टर्म्स यूज होते हैं। अब रेजिलियंस का मतलब क्या है? Resilience is the ability of a system. Resilience is the ability of a person, of a child, to rebound itself to its previous functioning level. Resilience उससे कहते हैं कि डिजास्टर आने के बाद, कोई आफत आने के बाद, कोई डिफिकल्टी आने के बाद आप वापस उसी लेवल पे आ जाए या उसको टॉलरेट कर पाए, यू अडॉप्ट, यू एब्जॉर्ब, और आपको इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना दे सके, ना आपको ज्यादा नुकसान दे सके। इट मींस द सिस्टम इज रेजिलियंस। सो एकेडमिक रेजिलियंस से मुराद यह है कि जो बच्चे किसी आफत से के शिकार हो, किसी भी बीमारी के शिकार हो, किसी भी फेलियर के शिकार हो, और उनके जब साइको सोशल सपोर्ट होती है, सो दे again get themselves back to the mainstream or to the level
they were performing previously. So वो child या वो system जो है वो उसको academic performance या academic education resilience या resilient education system कहेंगे. Anyhow, I'll be just reading the two quotations, and after that I'll be giving you an opportunity for or we'll be having the question answer session. Here I have the first quotation is by linking DRR with education in emergencies will bring Balochistan can move from crisis response to system resilience. DRR को एजुकेशन में इंट्रोड्यूस कराना या इसके साथ लिंक करना ये सिर्फ हमें क्राइसिस से नहीं निकालता, बल्कि ये हमें एक रेजिलियंट सिस्टम की तरफ ले जाएगा. रेजिलियंट सिस्टम से मुराद ये कि एक ऐसा सिस्टम कि आफत आने के बाद भी वो उसी तरह ही रहे. The second quotation I have written, that is, teacher preparedness directly correlate with students' retention and well-being during emergencies. अब जितना ज्यादा टीचर प्रिपेयर्ड होगा, जितना ज्यादा टीचर अवेयर होगा डिजास्टर्स के हवाले से, जितना ज्यादा टीचर जो है वो उसका ऑब्जर्वेशन कीन होगा, चाइल्ड ऑब्जर्वेशन कीन होगा और उसको समझ पाएगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास स्टूडेंट रिटेंशन होंगे, ड्रॉप आउट रेट कम होगा और उनका जो मेंटल वेलबींग है या फिजिकल वेलबींग है ड्यूरिंग इमरजेंसीज वो उतनी सेव रहेंगे. थैंक यू सो मच. नाउ इट्स योर टाइम for putting questions if you have any confusion related to the slides or related to any point. Please. Thank you for your presentation. I have a question. So I was wondering about the accessibility of disabled students. So my question is, in Pakistan, is there any like system or awareness regarding if there is any disabled students? Let's just say someone cannot walk and need a wheelchair, and if there any emergency happens like fire or any kind of hazards like earthquake, how they are going to manage this, and what are your suggestions for improving the condition? Thank you. Yes. Thank you for asking this question. Thank you for asking this question. It is a very relevant question, and this question, of course, highlights to the teachers a sort of awareness that what they should do during this situation. If you remember, when I was discussing about the DRM, disaster risk management, over there we discussed, I'll be going back to that slide so that other also can see. Over there we discussed the third point, planning evacuation. When we come to this point, planning evacuation, so here we must plan the evacuation routes for all those students who are disabled during any emergency, either that is earthquake, flood, fire, or any other mishap happens. Here it depends on the headmaster or the school, the administrative staff, or I would also say on the teacher also. They must have a contingency plan. And of course, the contingency plan contains all the risks and their way forward. So in the contingency plan, they must plan it and they must have it in their register on weekly basis or on daily basis. They must have this plan. And when this sort of mishap happens, they should have the evacuation routes, particularly for the disabled children. And those routes must not be used by all other children who run, who may cause any damage to the disabled children. Hope I answered the question. If any confusion, please further. Yes, thank you. अच्छा, किसी और का अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कमेंट्स में भी पूछ सकता है. हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे. Can I ask one more question if there is nobody to asking me any questions? Yes. Yes, so I wanted to ask, like, how effective is the early warning system in any kind of disasters? And
can people be aware well ahead before any earthquake or hazards that could happen in schooling system or schools in Pakistan? Thank you. Well, when we come to the early warning system, this early warning system is quite important, and this early warning system is completely based on risk mapping. This is based on hazard mapping. This is based on vulnerability mapping. In Pakistan, of course, this term on this work has been carried out. Areas have been identified, or the mapping of the risk has been completed, and particularly in Balochistan and where I belong to. Here we have conducted the mapping of risk, mapping of hazard, and other disasters, and we have published articles on them. Based on that literature, based on those work, the school administration can take benefit and can understand that either their area or the school where it is located is in the hazard zone or not. If that is in the hazard or vulnerability or disaster zone, so that headmaster or administration must make the plan for the evacuation and for other systems such as the early warning system. So they must already know that in this area the particular hazard is present and it may strike. And particularly it depends on the activeness of the people also, the teachers also in the school. They must know the daily weather forecast. They should go through them, and they must know about the other disasters happening in the area. And after that, they will be planning the early warning system. Jabir has asked a question, sir. This is very informative, especially for teachers. Is this recorded so that we can share it with teachers in our peer group? Yes, of course, it is recorded and you can share it, inshallah. And hopefully I answered the question of Zinat Ara. Thank you. And I was wondering, like, one more question. So I was wondering, like, if there is mobile text or any other apps that could be used in informing people about any kind of disasters or hazards ahead of time. Yes, of course. We have this system, and this system has been introduced, and latest technologies are also used in it. You can see again, I have not changed the slide. Thanks to God. Here it is written, preparing communities, the second one. While preparing communities, so here we have this option through messages, through pamphlets, and we have some other options also. When there is any disaster or forecast for any disaster, so we can announce it through the mosque loudspeakers, and we can spread pamphlets over there, or we can send messages as a public messages to the people so that they can come to know about the disaster and they take the early actions. Thank you. जी सर, सर आपकी मेरी आवाज आवाज आ आ रही रही है? है? आपकी आवाज आ रही है सर, आप पूछें क्वेश्चन। अच्छा रहीम साहब, मेरा एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड के जैसे आपने कहा था ये वेबिनार इटसेल्फ इज कैप्शन। मैंने पूछना ये था जैसे आप लोग फैक्ट्रीज में आपकी आवाज कट रही। असम में कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से एक बात कर, जैसे आपने कहा था कि ये वेबिनार इटसेल्फ इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग। आवाज अभी पूरी आ रही है सर? यस यस। तो इमरजेंसी इस तरह से डिजास्टर में हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अगर आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज में हम लोग मशीन्स की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं कि वो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन वो डिफॉल्ट ना कर जाए या वो बंद ना हो जाए। बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग हैजार्डियस माहौल से या डिजास्टर से पहले कैसे कर सकते हैं, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल देखते हुए? Yes, now see, over there in one of the slides I wrote here के age appropriate होना चाहिए. There was a slide in which I discussed that the learning should be age appropriate. अब learning should be age appropriate से मुराद क्या है?
एज अप्रोप्रिएट से मुराद ये है कि यू कैन नॉट टीच ऑल द टर्म्स एंड ऑल द कंसेप्ट्स टू अ चाइल्ड अबाउट द डिजास्टर. ही मे नॉट अंडरस्टैंड द डिजास्टर, लेकिन आप सिर्फ चाइल्ड को इतना अवेयर कर सकते हो कि अगर हमने इशारा दिया कि आपने उस तरफ जाना है, तो आप लोग सारे जो है लाइन में आप लोगों ने इस इवैक्यूएशन रूट को यूज करना है. इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों को अक्सर महफूज रख सकती है डिजास्टर से. अच्छा, इसके साथ साथ बच्चे सिर्फ अर्थक्वेक से अफेक्ट नहीं होते. ये चीज, बीइंग मैच्योर, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन आर नॉट ओनली अफेक्टेड फिजिकली और इंजर्ड. वो सिर्फ, उनको जख्म नहीं आ सकते, उनके सर नहीं टूट सकते, दे आर नॉट, देयर हैंड्स आर नॉट ब्रोकन ओनली. ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी, कलीम साहब, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे माशरे में फिर बच्चे जो है वो और वायलेंस के शिकार भी होते हैं. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस इंडिकेशन कि हमारे माशरे में हमारे माइनर एज जो बच्चे हैं, दे बिकम द विक्टिम ऑफ अदर वायलेंसेस. अच्छा, उन वायलेंसेस के हवाले से आई आई जस्ट यूज वन टर्म कि आपने उनको बेड टच, गुड टच, इनके हवाले से भी आपने उनको अवेयरनेस दी नहीं है. दिस इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ सेविंग देम फ्रॉम एनी डिजास्टर. अब डिजास्टर सिर्फ, आई टोल्ड यू कि वो नहीं है कि सैलाब आया, अर्थक्वेक आया, वेल्केनो आया, ये साइक्लोन आया, वगैरह वगैरह. नो, दिस इज आल्सो अ डिजास्टर फॉर अ चाइल्ड. कि अगर उसका सामना किसी ऐसे शख्स से होता है कि वो उसको हरास करता है, सेविंग अ चाइल्ड. अब इस एक चाइल्ड की बात नहीं हो रही है. दिस इज ऑल अबाउट दी प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन. एक एक क्लास में 50-60 बच्चे, 40 बच्चे, 25 बच्चे होते हैं. सो एटलीस्ट अवेयर देम ऑफ हाउ टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम सच mishappenings. So hopefully I answered the question related to that. थैंक यू सो मच। हमारा जो वेबिनार का टाइम था वो यहाँ पे एंड हो गया है। इसकी रिकॉर्डिंग भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वैट एलएमएस जो इसका यूट्यूब चैनल है। अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आज शाम तक इंशाल्लाह वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़। Thank you. Thank you.